Hello everyone, this is Rasika Budhe Pathak and I'm back again with the weekly reading for the week of 15th June to 21st June 2020. Now, as we usually do, I need you to close your eyes, take a deep breath and ask your angels, deities, whoever you trust, whichever divine power you trust, to guide you to the deck which has messages for you. There will be times you will not be able to choose and fix on one deck. It's fine. Not one pile, it's fine. Choose two piles only in case you are not able to fix on one pile, and then understand that there are mixed messages for you. So close your eyes, take a deep breath, relax and see which pile you're drawn to. जैसे कि मैं हर बार हर हफ्ते करती हूँ, मैं 15 जून से 21 जून की रीडिंग्स लेके आई हूँ. आपको ये करना है कि आपको शांत हो जाना है, आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है और अपने भगवान को, एंजल्स को, जिसको भी आप मानते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको सही पाइल की तरफ गाइड करें. फर्स्ट पाइल है सेलेनाइट की, सेकेंड पाइल है ब्लैक टर्मलीन की, तीसरी पाइल है पाइराइट की. जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं उसमें ही आपके लिए मैसेजेस होंगे. सो आप प्रे कीजिए कि आप आपको सही गाइडेंस मिले सही पाइल की तरफ. अगर आप बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी पाइल होगी, ओनली इन दैट केस आप दो पाइल भी चुन सकते हैं, क्योंकि इन दैट केस आपके लिए मिक्स्ड मैसेजेस होंगे. अगर आपने चुन लिया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जिसमें आप अपने टाइम स्टैम्प पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं. थैंक यू. देखते हैं आपकी वीकली रीडिंग में क्या आया है. हेलो एवरीवन, दिस इज़ फॉर ऑल दोज हु चोज द फर्स्ट पाइल, this beautiful selenite crystal. Before we go ahead, I want to tell you that while I was drawing the cards for this week, I have got a general guidance for everyone across the piles, which is telling them that it's basically telling that you should increase protection. You should be much more careful. If possible, if your faith permits, play Hanuman Chalisa daily. Okay, in fact, if you see this time in all the deities that I have my Hanumanji who's right here. I generally put Ganesha card down below, but I have kept it up. I somehow am very strongly feeling that he's the protector and I'm very connected to him. But yeah, he's the obstacle remover, he's the protector. So it's a general message for everyone. Please be safe. You have to take care. Okay, so again, coming back to everyone who's chosen this beautiful pile and this lovely stone. Now selenite is a crystal that does not need cleansing. It has self-cleansing properties. So it tells me that somehow you have been holding on to a lot. Okay, you have been taking a lot of things on yourself which is not required. You need to put down the baggage. You need to you need to not worry so much about others. Also, this is a stone of peace and inner harmony. It is about it puts up vibrations of compassion. There is healing, reconciliation. This also stone tells us that we have to understand the meaning of the importance of relationships and being good to others,
but with that we don't have to we don't have to forget our cleansing our own self, because you're so busy in doing things for others, is my feel. Also, this reminds you to step back from pressures of daily life and appreciate what is, the kind of beauty which is there in nature, or things that are good around you. Okay, this is what the stone tells me. Let's look at what are the cards. So like you all know, I'm launching a tarot fundamentals course. If you're interested, you can click on the link below in the description, and you can see, you can join the group. You can you can also look at how the course is going to be conducted. There's a video for that too. Anyways, let's look at what are the situations that we are going to face in the coming week. Okay, it is the Four of Cups and Judgment. Four of Cups is clearly telling me that there are things or opportunities coming your way, or there are things happening which you are just not liking. Okay, it's not because you feel it's not worth you. Situations where you think that I have done much better. This is not what I want to do. I don't want to compromise, but trust me, it's the divine who's giving you this. If this is not the final thing, this is the stepping stone. Please do not underestimate the the judgment of the divine, that this opportunity is not worth it. Take it, use it as a stepping stone and move ahead. So you will be presented with an opportunity situation in this coming week where you will not want to take it up, but you should reconsider it, think about it. It might be a strong stepping stone. Other card that we've got for this week is the Judgment. So there is something that you guys have been waiting for. You guys have been waiting for an announcement. You guys have been waiting for help. You guys have been waiting for some kind of signal, and it's most likely that you will get this a signal this week. So once you get a sign, or then you will kind of you have to listen to the call. Don't sit back, don't worry, you've been taken care. I somehow feel a lot of people will get back to the work they were doing. There are some mails, or there are some announcements which you've been waiting for weeks, which will happen this week, and you will need to adhere to it. So this is a situation that is expected to come up this week. Let's see what are the tools that we have to combat this situation. Oh, this is so lovely. You have the Four of Wands and the Three of Wands. Okay, so let's look at it. The Three of Wands is telling me that help is going to come from a long distance. So either a friend or a relative or anyone staying away will either give you some solutions, will give you some ways to combat the situation, or give you an advice. Okay, but basically this is a person who is staying away from you. There are some people who might have their extended family or parents or someone also offering some kind of help in this time when you have to start managing things again. So this is what Three of Wands tells me. It's a lovely help that is coming your way. I'm also getting a cards of Four of Wands, which means a lot of you might get back home, might meet people, and this happiness will help you
sort these situations. Also, again, like I was telling you, here and here I'm getting a similar sense that people who are close to you, almost like your community, is going to step up and help you to understand that this is something that you should do, and how to make the most or adhere to this kind of what do you say, this kind of announcement which is going to come your way, or how to tackle that. So it's almost like the whole community is sitting there to help you. People who are close to you, people who are away from you, all will come and help you. This is so nice. Let's see what are the Ganesha messages for you. Oh, lovely. See, what is Ganesha saying? It's asking you to accept exactly what I've been telling you, and it's asking you to have, see, childlike expression has been coming for a few weeks now, and obviously in the monthly reading, if it comes, then it does end up appearing in weekly readings as well, because it's a subset. So it tells me what situation you comes, you have to accept it. Okay, you have to trust that things will be okay. Also, it tells me that when an announcement will be made, or when you get to know of some news, okay, you need to just abide to it, okay, trusting the Almighty. Okay, because when we talk of childlike expression, it is almost like the pure innocence, when the child is thrown in the air, and it has it laughs, because it knows that it is not going to fall down, someone is going to catch him. It has a trust. So that kind of trust is something that you need to build when this kind of situation comes up. Very lovely angel messages. Let's look at what is the Zebu symbol for this week. Oh, look at this. Release expectations. Again, it is so beautifully fitting the situation. So what you're going to the kind of situation you're going to face, you have to just release expectations. Your community is going to help you do that, and you have to accept it and be innocent and move on. Release expectation is such a beautiful symbol. Actually, we should regularly use it, because most of our life is about how things have not gone according to our expectations, and that is something which brings in pain rather than the real pain. So release expectations. If you combine with any situation, trust me, you'll start finding solutions. Let's see what is this batch card that angels have chosen for you. Centauri. Okay. So it clearly tells me that you can't say no. It's very, very difficult for you to say no. Almost, even if you're dying, you will just go and help others and not think of saying no. Now, this is something which you need to overcome. You cannot tell people what your own choice is. To the point that at times you almost get, exploited, and you know that. It is not that you don't know that, but you still choose to not say no. You know what? You're very sweet people. You are just thinking about others. You are just thinking about family. You're thinking about others' feelings, or you're thinking about your responsibility. You're thinking, oh my God, this is my duty and I cannot fall short of it. You're just there. You're this kind of people. But don't let anyone else walk over you just because you are nice, or you can't say no. Okay. If you feel you've been coughing for long, please use Centauri, chant Centauri this week. Also, I feel you extend yourselves too much. Okay, I now get it. See, that's where these two remember what I had said for selenite? It fits in with Centauri.
you extend yourself too much. It's time for your own personal cleansing. Accept it, trust. For some time, just let go of the control. Just let go of serving others. Think about yourself. I have been talking about self-love for long, but it's time to implement it. Release expectations even from yourself. At times you're very hard to yourself. I somehow am getting the feel that you're not being fair with your own self. Okay, so do that, and this week will sail through. It looks like a lovely week. Looks like things are going to be sorted in the week ahead, and you will definitely sail through. So this was all about the weekly reading. If you feel that this is useful, do share it with others. Please mention what you feel about this reading in the comments below. It really motivates me and helps me come back with readings for you all. Thank you so much. Have a great day ahead. हेलो दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ किया है और ये ब्यूटीफुल सेलेनाइट क्रिस्टल चूज़ किया है। अभी सेलेनाइट क्रिस्टल के बारे में बात करने से पहले या पाइल पिक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये कार्ड्स बिछा रही थी, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील आया है कि आपको इस वीक अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ना। तो प्रोटेक्ट करना है कोई भी नेगेटिव चीज़ से, अपने हेल्थ में, हर चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करना है। इसलिए अगर आप देखेंगे आज मेरी रीडिंग में ना हमारे छोटे से हनुमान जी है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लगा है कि अगर आपका फेथ आपको परमिट करता है तो आप प्लीज़ हनुमान चालीसा हर रोज़ चलाइए। बहुत ज़रूरी है इस वीक में आपको हनुमान चालीसा चलाना। ऑल्सो आप देख रहे होंगे कि मैं गणेशा का कार्ड मैंने सबसे ऊपर रखा है, जबकि मैं हमेशा सबसे नीचे रखती हूँ और मेरी गणेशा तो है ही मेरे साथ। तो मुझे लगता है कि ये आपको प्रोटेक्ट करने में और व्हाट यू से आपको प्रोटेक्ट करने में और ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने में गणेशा आपकी बहुत मदद करेंगे। तो ये जनरल था जब मैं सबके लिए कार्ड्स निकाल रही थी, जो मुझे लगा, इसलिए मैंने आपसे ये शेयर किया। अब देखते हैं आपकी पाइल क्या कहती है। आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है जो सेलेनाइट है। अब सेलेनाइट एक सेल्फ क्लेंजिंग क्रिस्टल होता है। सेलेनाइट तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी और को क्लेंस करना पड़ता है। तो इसका क्लियर मतलब इसका सिग्निफिकेंस आपके लिए मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों का बहुत बोझ उठाते हैं, चाहे वो इमोशनल बैगेज हो, चाहे वो एक्चुअली किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प करना हो, अपने आप को बहुत एक्सटेंड करके हेल्प करना हो। तो ये क्रिस्टल आपको बता रहा है कि आपको अपने आप को अभी डिटॉक्स करना है, आपको अपने आप को अभी क्लेंस करना है और दूसरों का बोझ नहीं उठाना है। ये बहुत ज़रूरी है। ये स्टोन में ना बहुत व्हाट यू से पीस या हार्मनी देने वाली प्रॉपर्टीज़ होती है। तो मुझे लगता है ये आपको इस मोमेंट, इस वीक या इसकी बहुत ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप में अगर व्हाट यू से रिकंसाइल करना है, हीलिंग करना है, तो भी ये बहुत अच्छा क्रिस्टल है। ये उन लोगों के लिए भी है जहाँ पे हमको अपने आप को बहुत अच्छा व्हाट यू से हम बहुत मेहनत से लोगों के बारे में सोच के रिलेशनशिप्स को महत्व देते हैं। ये भी मुझे फीलिंग ये क्रिस्टल आ रहा है। पर आप थोड़ा अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए। मैं सेल्फ लव की बात बहुत पहले भी कर चुकी हूँ और ये स्टोन तो मुझे बहुत स्ट्रांगली बता रहा है। ये स्टोन हमें आपको ये भी रिमाइंड करता है कि आपको ज़रूरत है अभी अननेसेसरी प्रेशर्स जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं, उससे थोड़ा हट के आप जो अच्छी चीज़ें हैं ना ज़िंदगी की, उन पे कंसंट्रेट करें। जो ज़िंदगी में अच्छा है उनकी तरफ ध्यान ले जाएं। ये स्टोन बताता है आपको बहुत क्लियरली। तो आइए देखते हैं इस हफ्ते की रीडिंग्स क्या बताती हैं। ऐसे एक ऑनलाइन टैरो फाउंडेशन वर्कशॉप में लॉन्च कर रही हूँ। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए देखते हैं इस वीक में हमारे लिए क्या है, किस तरह की सिचुएशंस हम फेस करने वाले हैं। ओके, तो आपको है 4 ऑफ कप्स और जजमेंट। 4 ऑफ कप्स बताता है कि आपको किसी तरह का एक सॉल्यूशन मिलेगा या कोई बीच का रास्ता मिलेगा, आपको प्रेजेंट होगा, वो आपको वर्थ नहीं लगेगा,
हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए जो आपको लगे अरे ये तो मेरी कैपेबिलिटी से बहुत कम है, या ऐसा मुझे नहीं चाहिए था, मैंने ये तो नहीं मांगा, मुझे ये क्यों करना पड़ेगा, आपको ऐसा फीलिंग आ सकता है। बट याद रखिए कि ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्ज़ी है, या ये आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन होगा, एक सीढ़ी की तरह काम करेगा जिसके थ्रू आपको अलग चीज़ें मिल सकती हैं। आपको ये लगेगा कि मैं तो इससे बेहतर चीज़ें कर चुका हूँ, इससे अच्छा तो मैं छोड़ दूँ या मैं कुछ और टाइम वेट कर लूँ। पर आप थोड़ा सोचिए और फिर आप ये डिसीजन लीजिए। हो सकता है ये आपके बच्चों के बारे में हो, या आपके किसी फैमिली मेम्बर को ये सिचुएशन फेस करनी पड़े जिसकी वजह से आप ये सिचुएशन को एनकाउंटर करें अपने वीक में। अगर हम ये जजमेंट कार्ड देखते हैं तो एक तरह की अनाउंसमेंट या किसी तरह का किसी तरह का ईमेल या किसी तरह का फाइनल जजमेंट या किसी अनाउंसमेंट के लिए हम वेट कर रहे थे, वो आपको डेफिनेटली इस वीक में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए होगी, आपको पता नहीं होगा ये कब होना है वो कब होना है, ये सब इस वीक में पता चल जाएगा। और इसकी वजह से हो सकता है आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े और कुछ और और कुछ करना पड़े, या कहीं ट्रैवल करना पड़े या कुछ करना पड़े इस अनाउंसमेंट की वजह से। तो इस तरह का सिचुएशन आपको आएगा। बट ये लॉन्ग रन में आप इसको एडहर करेंगे तो ये अच्छा ही है। आपको अगर लग रहा होगा कि कैसे होगा क्या होगा, आप चिंता छोड़ दीजिए, ये प्रोटेक्टेड हैं आप, ये मुझे फीलिंग दे रहा है। बट हाँ, ये ऐसा सिचुएशन आएगा जब आप किसी तरह की अनाउंसमेंट बहुत दिनों से एक्सपेक्ट कर ही रहे थे और अब वो आपको इधर वो अनाउंसमेंट आएगी या उस अनाउंसमेंट के पे अमल होना इस टाइम में शुरू हो जाएगा। सो ये हुआ किस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं, किस तरह की सिचुएशंस आ रही हैं। अब देखते हैं इसको हम फेस कैसे करें, या हमें किन चीज़ों से इसको बेहतर करने का चांस मिलेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे बहुत क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि जो दोस्त या कुछ रिश्तेदार या कोई भी जो बहुत दूर रहते हैं आपसे, वो आपको सोल्यूशन या इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करें इसके उसके तरीके बताएंगे, है ना। हो सकता है कुछ लोगों के पेरेंट्स हो, वो उनको एक्चुअली फिजिकली आके इस सिचुएशन में हेल्प करे, बट दूर से या कहीं अपने घर के बाहर से ये हेल्प आने वाली है। ये आप ध्यान रखिए। आप ओपन रहिए आइडियाज़ के लिए, एक्शंस लेने के लिए। जब आपको इस तरह की कोई आइडिया आएगी या कोई आपको हेल्प आएगी। दूसरा, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आप हेल्प मांगते नहीं हैं, इसलिए आपको हेल्प मिल नहीं रही है। आप ना मन से हेल्प मांगिए, तब आपको ये हेल्प मिलेगी। मुझे ये कार्ड बताता है कि आपको ना बहुत कम्युनिटी सपोर्ट है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स नहीं तो फ्रेंड्स हो, कज़न्स हो, कॉलोनी वाले हो, आपको ये इस तरह का सपोर्ट बहुत है। तो एक तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे जिसकी वजह से ये डिसीजन लेना आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि वो भी आपको मेंटली इसमें हेल्प करेंगे। और दूसरी चीज़, आप माइंड भी आपका फ्री हो जाएगा। तो आप याद रखिए, और आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्प अगर चाहिए तो वो मांगनी पड़ती है ना। जब तक वो हम हेल्प मांगते नहीं हैं, भगवान को भी परमिशन नहीं है कि वो आके हमें हेल्प करें, एंजल्स को परमिशन नहीं है, किसी को परमिशन नहीं होती है जब तक हम वो हेल्प मांगते नहीं हैं। तो प्लीज़ प्लीज़, मुझे लग रहा है ये मैं अपनी पहली रीडिंग में नहीं बोल रही थी, पर मैं अब बोल रही हूँ कि आप हेल्प मांगिए और आप अपनी सिचुएशन को डिस्कस कीजिए, ओपन रहिए। आइए देखते हैं कि गणेशा जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस हफ्ते के लिए। देखिए, आपको एक्सेप्टेंस और चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन बता रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, इसको आपको, जो मैं पहले कह रही थी कि आपको लगेगा कि ये वर्थ नहीं है, पर ये आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। ऑल्सो जब ये अनाउंसमेंट आएगा, हो सकता है कि आप बहुत खुश ना हो, पर आपको गणेशा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आप भरोसा रखिए, है। जैसे बच्चों को भरोसा होता है कि चाहे कुछ भी हो, अगर मुझे हवा में उछाला जाए तो मैं ज़मीन पे नहीं गिरने वाला, मुझे पकड़ लिया जाएगा, इसलिए वो उस पल में जी रहा होता है, उसका मज़ा ले रहा होता है।
तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आपके पास हेल्प है, आप ट्रस्ट कीजिए, आप इनोसेंटली सरेंडर कीजिए, है ना। जब हम बियॉन्ड द पॉइंट कुछ नहीं कर सकते तो हमें सरेंडर करना चाहिए, और ये कार्ड आपको वही बोल रहा है कि आप सरेंडर कीजिए, आपका ध्यान रखा जाएगा, यू विल बी टेकन केयर। ज़ीबू सिंबल जो एंजल्स ने आपके लिए चुना है, बहुत सुंदर सिंबल है, रिलीज एक्सपेक्टेशंस का। अब ये अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि ये जो स्वर्ल है और रिलीज एक्सपेक्टेशन है सिंबल बहुत सिमिलर है। ये मैंने पहले वाले रीडिंग में मुझे नहीं स्ट्राइक हुआ। तो मुझे लगता है बाहर से भी जो आपको एक तरह से सोल्यूशन आएगा वो यही आएगा, रिलीज एक्सपेक्टेशन का। आपको इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको एक्सपेक्टेशन जो है ना वो रिलीज़ करनी है। उसकी वजह से ये जो दोनों सिचुएशंस आने वाली हैं उनको आप इजीली फेस कर सकते हैं। ऐसे ये रिलीज एक्सपेक्टेशन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सुंदर सिंबल है, बिकॉज़ हमें अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी फैमिली से, हमारे रिलेशनशिप से, सबसे, हमें हमारे जॉब से हमें एक्सपेक्टेशन होती है, अरे ये हमारे लिए ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, मैं तो इतना कर रही हूँ। नहीं, ये रिलीज एक्सपेक्टेशन से जो हार्मनी और शांति मिलेगी वो हमें ही मिलेगी, इसलिए हमें एक्सपेक्टेशन से बाहर जाना है। आइए देखते हैं एंजल्स ने आपके लिए कौन सा बैच फ्लावर चुना है। एंजल्स ने आपके लिए सेंटोरी चुना है। सेंटोरी क्लियरली बताता है कि आप लोगों को मना नहीं कर पाते, आप क्या कहते हैं, जूझते हैं जब किसी और के लिए कुछ, मतलब किसी और का कुछ है तो उनका मन नहीं तोड़ना चाहते। आप फैमिली के बारे में, दूसरे के बारे में सोचने में इतने ही हो जाते हैं कि आप बोझा बढ़ाते रहते हो, जो मैंने ये सेलेनाइट के टाइम बोला था कि आप बोझा बहुत ले लेते हो, इसलिए सेल्फ क्लेंजिंग की ज़रूरत है। ये मुझे ये भी बताता है कि आप ना इतना दूसरे के लिए ये कर लेते हो कि आप अपनी नहीं सोचते, चाहे वो आपको कैसे भी ट्रीट करे आगे चल के, या पहले उन्होंने कैसे भी ट्रीट किया हो, आप बिल्कुल ही उनको मना नहीं करते। आप बोलते हैं जाने दो ना, अभी उनके लिए कर देते हैं, नहीं करना है। आप बिल्कुल अपनी चॉइसेस नहीं बता पाते। मत कीजिए ऐसा, बिकॉज़ उसके बाद क्या होगा ना कि वो बोझ आप पे ही बढ़ेगा। आप अपने आप को इतना ज़रूरत से ज़्यादा एक्सटेंड मत कीजिए, है ना। तो इट्स जो कि आप अपने पेरेंट्स को मना नहीं कर सकते, बच्चों को मना नहीं कर सकते, दोस्तों को मना नहीं कर सकते, अपने स्पाउस को मना नहीं कर सकते, तो फिर बोझा बहुत बढ़ जाएगा। और ये अपने आप से ना इतना अच्छा होने का या एकदम परफेक्ट होने का रिलेशन एक्सपेक्टेशन भी आप रिलीज़ कीजिए। सो इससे क्या होगा कि हार्मनी, पीस, लिविंग इन द मोमेंट और इनोसेंस, ये सब हमें रीगेन करने में, बैलेंस रीगेन करने में हेल्प करेगा। सो ये रही इस वीक की रीडिंग। अगर आपको पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगा, क्या आपसे रेजोनेट हुआ, क्या नहीं हुआ, प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। हेलो एवरीवन, दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2 for everyone who's chosen this beautiful black tourmaline. Before I start the readings, I must tell you, while I was laying the cards, I got a strong feeling to tell all of you that this week we have to stay protected, and that's why I have my Hanuman ji right there, in the middle, overseeing all the readings. I also have Ganesh ji who are always there, and this time I have put up the Ganesha cards right above. I feel he is the protector, he is the one who will remove obstacles. If your fate permits, do play Hanuman Chalisa the entire week. This is a general message that I had to give for everyone. Now let's look at what the pile that you've chosen. You've chosen this amazing black tourmaline. Now black tourmaline itself is a stone that that protects. It is a stone that ensures that no negativity, nothing which can harm you can come close by. So it's very important that I feel you people are surrounded by some toxic situations or relationships, and you need to get rid of that. The stone is telling you to step away from all of it and live life a little free, and
just step away, let the chaos settle. This is also somewhere a wish fulfilling story. If you have a wish, you generally put a black tourmaline on it and let it stay, and if it's meant to be, it definitely happens. So I also feel that a wish of yours might come true, but not immediately, but you might be set on that path of your wish fulfillment. So let's see what the look at the energies this week. So as you all know, there's a tarot course, foundation course, online course that I'm bringing up. You can check out the link in the description below, and you can also look at the course outline. The video link is right there. Now let's look at what are the situations that we will face up this week. Okay, very interesting. So the Fool card is telling me that you might get into a situation where you would be forced to, or either by force or by choice, you would get on a searching spree. You would kind of look at exploring the options that are available. You have this card clearly is telling me that you have to look outside your current comfort zone. You have to you have all the skills, you have all resources, you are young at heart, but you need to kind of you need to take a leap, and you need to explore something new. Okay, you have to leave back whatever you thought was the plan, and now just make a new roadmap and create a new plan. So I'm getting a feeling it's all beautiful. Okay, it is going to be a lovely thing in future. So you will definitely get options, or you might have to look at exploring some new, completely different opportunities. Okay, now this tells me that a relative, maybe an older one or a male, will kind of come up and support you, or give you a solution in this kind of situation, or you might get some offer or some exploration opportunity via this person. It also tells me that if you're looking for a partner, or if you're looking to finalize things will get finalized in your love life. Things will get finalized this week. Serious commitments like marriage can happen, engagements, marriage, all that can happen. The commitment towards that will be stronger this week. It also tells me that in the exploration, or in whatever you want to do, your partner, even if she's a female, she will stand by you and encourage you to take this up or try something. So I think there is support of a loving person, or a loving person will help you combat a situation. Or though it's in a situation part, I am very strongly getting a feel that this there's this person who's a relative, or a very close acquaintance or friend, or comes via a friend, will bring up a situation to which will help us in future. Okay, so let's look at what are the solutions, what are the what are the tools that we have to combat the energies of this week. Okay, lovely. So now this time we've got 4 of cups in the solution position.
So this is very telling me that solution help is going to come unexpected. While you might expect a type of help, a different type of help is going to come to help to sort this situation. Help will come from someone who is younger, or who will, or this person might refer you to someone who is younger, who will kind of help you in this situation. I'm also strongly getting a feel that you had some skills in the past which you have now stopped using, okay, or you had some dreams which you have completely given up. This is the time to reinvent those dreams, and this person will either remind you or help you polish those things. So polish your older skills and combat this exploration and get onto the exploration journey with the help of some relative, or support from relative. If we look at the Two of Wands, it is again telling me a similar story, that you have some skills, okay, you need to pull them out. And most important thing, the skill that you have, you stop trusting it. That is the biggest problem. The problem is not that you can't make it, the problem is that you don't believe that you can make it. Everyone believes it. Everyone is looking up to you. You have to bring in the magic by trusting yourself. So you will be reminded of a dream by a younger, or a help will come in the most unexpected way. Please look at it. Don't let any small signal, any small sign, just don't ignore any small sign, and trust your intuitions, trust your skills. Bring up the old skills that you had given up, or you thought are not useful. Bring them up, repolish, and get on to work. Things will move really well. You'll be set on the path of movement. Now let's see what are the Ganesha messages for you. Oh, this is so lovely. I just love this card. Every time the promise of future comes, I simply love this card. So this card is telling me, see, look at these two cards. Looks like, you are embarking a journey, and on other end, Ganesha waits for you to just tell you everything is going to be fine. But you need to take this leap of faith. I'm right here. Once you go through the rough patch and make it, I'm there to welcome you. Your future is bright, but you need to trust and take this leap. It's almost like, it's complementing this card. If you see, even visually you can see this. Also, Ganesha is telling me that you need to calm down. You are surrounded by a lot of toxic people or toxic situations. You need to calm down, and spiritual practice is a way to calm down for you to react well. Otherwise, this positive situation can get into a very emotional fight or an emotional ruckus, which will make you, which will stress you. So don't flow in emotions when a situation comes up this week. And for that, Ganesha is already asking you to start spiritual practice so that you can calm down and handle the situation. Let's look at what angels have, what Zebu symbols angels have shared with you. Oh, lovely. See, it just goes with this. It's asking you to work towards inner peace. Draw this symbol on your hand, on your, in the air. Just draw the symbol. Inner peace is vital when you're going to embark this journey, when you have to look for signs, trust yourself. Everything is beautiful, but if you're not peaceful, if your energies are haywire, then you will not be able to take the right decision. Let's see what is the angel Zebu for you. Okay, it is the Heather. So Heather is telling me you looks like you're very worried about yourself at this moment. You are strongly looking at the problems that have happened with you.
you are you're very vocal about what has happened to you, what is going wrong with you, how have things not worked for you, or how are you working very hard, or things like that. You're expressing your own problems, for that matter. Also, I feel that you intend to be surrounded by people at this moment. It's very important to calm down. Again, it's coming to the same thing. You need to have your mind, you have to shut your mind down. You have to do spiritual practice. You need to have inner peace, so that you can look at the environment. You can look beyond your own problems to find a solution when it comes. So this is about the weekly reading. Please mention in the comment section, how did you feel about the reading? If you feel this reading can benefit anyone else, please share this reading with your friends and family. Thank you so much. Have a great day ahead. Hello everyone. This is for ये उन सब के लिए है जिन्होंने ये लवली ब्लैक टर्मलिन चूज़ किया है। अब इससे पहले कि हम ये रीडिंग्स करें, मैं आपको बता दूं कि मुझे एक गाइडेंस आया था जब मैं ये कार्ड्स बिछा रही थी, सबके लिए रीडिंग के लिए प्रे कर रही थी। तो मुझे आया था कि सब ने ये वीक में बहुत प्रोटेक्टेड रहना है ना। आप देख रहे होंगे आज मैंने हनुमान जी सामने खड़े हैं ये रीडिंग को देखते हुए। तो हमें, अगर आपका फेथ परमिट करे तो प्लीज़ हनुमान चालीसा रोज़ प्ले कीजिए। आप देख रहे होंगे कि गणेशा जी तो है ही। आज मैंने गणेशा का कार्ड भी ऊपर रखा है। मुझे लगता है गणेशा जी कोई भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसमें से रास्ता निकालेंगे, या किसी भी तरह की अगर कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो वो भी गणेशा जी देते हैं। तो ये मुझे जनरल मैसेज आया था, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। आइए देखते हैं आपकी स्पेसिफिक पाइल में क्या आया है। आपने ब्लैक टर्मलिन चूज़ किया है। अब ये बहुत सुंदर स्टोन है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टोन है जो किसी भी नेगेटिविटी से दूर रखता है। तो मुझे लगता है कि आप करंटली ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ आपके आजू बाजू बहुत टॉक्सिक लोग होंगे, बहुत नेगेटिव बातें हो रही होंगी। आप हो सकता है कि उनसे दूर रहने की कोशिश करते होंगे, या आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब होता होगा। तो ब्लैक टर्मलिन आपको बोलता है कि आपको प्रोटेक्टेड रहना है, आपको डिस्टेंस पे रहना है। ब्लैक टर्मलिन एक विश फुलफिलमेंट स्टोन भी है। तो जब मुझे कोई विश चाहिए होती है तो मैं एक चिट्ठी पे लिख देती हूँ, उसके ऊपर वो नीचे रख देती हूँ, उसके ऊपर ब्लैक टर्मलिन रख देती हूँ, वो विश पूरी हो जाती है। अगर वो विश मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर वो विश मेरे अच्छे के लिए हो तो वो ज़रूर पूरी हो। तो बहुत मेरी ऐसी विशेस पूरी हुई हैं इस स्टोन से। तो मुझे लगता है ये टाइम ऐसा भी आएगा जहाँ स्लोली आपकी जो विशेस हैं वो पूरी करने की तरफ आपका मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो आइए देखते हैं आपकी वीकली रीडिंग क्या बोलती है। मेरा टैरो फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स आ रहा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें या उसके कोर्स कंटेंट्स देखना चाहें तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे। आइए देखते हैं कि ये वीक में आपको किस तरह की सिचुएशंस फेस करने को मिलेंगी। सो आपको आया है फूल और किंग ऑफ कप्स। तो फूल मुझे बताता है बहुत क्लियरली कि आपको कोई चीज़ या कोई बिजनेस या कोई आइडिया या कोई नया चीज़ आपको एक्सप्लोर करने के लिए आप पुश होंगे। आप इधर आपका मन करेगा या सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। आपके पास सब स्किल्स हैं, आपके पास सब नो हाउ है, आपको भरोसा करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इस तरह की सिचुएशन आएगी। इस तरह की सिचुएशन आएगी जो आपने पुराना किया है, आपको कभी लगे कि अब मुझे छोड़ के आगे बढ़ना है क्या, मैंने तो नहीं सोचा था, ये मेरे प्लान के हिसाब से नहीं है। बट जब वो हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होता तो वो भगवान के प्लान के हिसाब से होता है, और वो प्लान डेफिनेटली सही होता है। ये भरोसा करके आप आगे जाइए, आप एक्सप्लोर कीजिए, आपके स्किल्स जो हैं उसके हिसाब से आप एक्सप्लोर कीजिए, एंड डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना पड़े, ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी वीक में। किंग ऑफ कप्स मुझे बताता है कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो कोई एल्डर
या कोई मेल फिगर आपको उस सिचुएशन में हेल्प करेगा। दो किंग ऑफ कप्स आया है सिचुएशन पोजीशन में, वो मुझे ये भी आपको बताने को बोल रहा है कि आप बहुत इमोशंस में बह मत जाइए डिसीजन लेते समय, या आप बहुत आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोचना है जब आप ये डिसीजन लेते हैं। मैंने जब इंग्लिश में बताया तो मैंने थोड़ा डिफरेंट बताया था, बिकॉज तब मुझे डिफरेंट गाइडेंस आ रही थी, अब मुझे डिफरेंट गाइडेंस आ रही है। तो मुझे ये भी लगता है कि आपको कोई सीनियर या कोई रिलेटिव आपको ये सिचुएशन में इधर आपको दिखाएगा या आपको इस सिचुएशन में हेल्प करेगा। मुझे ये भी लगता है कि जब आप ये एक्सप्लोरेशन पे निकलेंगे तो आपका पार्टनर जो है वो आपको इसमें प्रोत्साहन देगा या सपोर्ट करेगा, पर वो आपको अपोज नहीं करेगा इस सिचुएशन में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर आप कोई भी ऐसे मोमेंट में आए जहाँ पे डिस्कशंस हाइटेंड हो गए, तो प्लीज़ याद रखिए इमोशनल टॉक नहीं कीजिए, इमोशनल डिसीजन नहीं लीजिए, बिकॉज एनर्जीज इमोशंस की तरफ या कोई रिलेटिव्स को बीच में लाने के तरफ इशारा कर रही है एनर्जीज, उनसे आप थोड़ा सतर्क रहें। आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या टूल्स हैं जिससे हम ये हफ्ता कम्बैट कर सकते हैं। हमारे पास है 4 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो 4 ऑफ कप्स क्लियरली बताता है कि आपको ये जो है ना रिलेटिव या कोई ओल्डर या ऐसी कोई एडवाइस देगा जिससे आप कोई यंगर इंसान जो है उसके थ्रू आप मदद लेंगे। आपको जिस तरह की मदद चाहिए वो मदद तो नहीं आएगी, पर वो जो मदद करेगा उससे आपका ग्रोथ ज़रूर होगा। ऑल्सो ये कार्ड मुझे पहले भी बता रहा था कि आपने अपनी कुछ स्किल्स हैं जिनको आपने बिल्कुल या ड्रीम्स हैं जिनको आपने बिल्कुल बंद कर दिया है लाइफ में, है ना, आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। अब वक्त आ गया है कि आप उसको फिर से देखिए और उसको एक्सप्लोर करें ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो याद रखिए आपको किसी यंग इंसान के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगा या आप एक पाथ पे जाएंगे और वो आपको आगे ज़रूर लेके जाएगा। इस चिंता की घड़ी में वो आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। अगर मैं ये कार्ड देखती हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स भी सॉल्यूशन पोजीशन में है या हेल्प पोजीशन में, मुझे लगता है कि स्किल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, सब आपको ट्रस्ट करते हैं, पर आप अपनी स्किल्स को ट्रस्ट नहीं करते। ऑल्सो आपने अपने में कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है। सो ये वक्त है कि आप कॉन्फिडेंट हो ताकि वो जब आप एक्सप्लोर करने निकले तो आपकी स्किल्स आपको काम आए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपनी पुरानी स्किल्स को रीपॉलिश करें और उसके थ्रू आप आगे बढ़े जिस सिचुएशन में आपको जाना है। ऑल्सो ये देखते हैं कि हमें गणेशा के क्या कार्ड्स हैं, गणेशा का क्या गाइडेंस है इस हफ्ते के लिए। देखिए प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, ये मैं हमेशा एक्साइट होती हूँ जब मुझे ये कार्ड दिखता है। ये कार्ड बताता है कि देखिए ये फूल है, आपको ये वाले कार्ड में आपको मैं बोल रही हूँ कि आपको एक्सप्लोर करना है ना, आपको आगे बढ़ना है। और आप देखिए उस तरफ आपको बता रहे हैं कि फ्यूचर बहुत बढ़िया है। आप जब ये पथरीला रास्ता तय कर जाएंगे या ये लाइफ में इस वेंचर में आप स्ट्रगल करेंगे या इस जो भी रास्ते में, या चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, किसी भी रास्ते में आप आगे बढ़ेंगे उसको वेंचर करके, उसमें फाइनली आपको पीस और हैप्पीनेस और ग्रोथ मिलेगा। एक तरह से देखिए ये दोनों कार्ड जिस तरह से आए हैं, लग रहा है एक तरफ ये है और दूसरी तरफ क्या है आप देख ही रहे हैं, गणेश जी हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं। सो आप इसको पॉजिटिवली ले, आप एक्सप्लोर करें, आपके लिए फ्यूचर बहुत सुंदर है, आपको ट्रस्ट करना है, आगे बढ़ना है। ये कार्ड आपको बताता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है वो, एक सेकेंड में थोड़ा एडजस्ट करती हूँ कार्ड्स के लिए। ओके, ये मुझे बताता है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस
की तरफ ध्यान देना है। मुझे लगता है कि जब ये सारी सिचुएशंस आएंगी, आपको इमोशनली काम डाउन करना है। आपको एकदम से डिसीजन फास्ट अगर आप लेते होंगे तो आपको नहीं लेना है ना। तो आपको गणेशा बता रहे हैं कि शांति से आप डिसीजन लीजिए, आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं। अगर चाहे वो अभी आपको लगे या ना लगे, लॉन्ग टर्म में वो आपके फेवर में ही हैं। आइए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या ज़ीबू सिंबल के थ्रू मैसेज दे रही है। आपको ज़ीबू सिंबल आया है इनर पीस का। ये बिल्कुल आपके रीडिंग के साथ मैच करता है कि आपको इमोशनल टर्मोइल आएगा, आपको डिसीजंस लेने हैं, आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, फ्यूचर अच्छा है। आपको ऑलरेडी गणेशा जी बोल रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरफ जाना है, और इनर पीस आपको हेल्प करेगा ये सारे सिचुएशंस को कॉम्बैट करने के लिए। बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सिंबल है। इनर पीस की तरफ हम सब जाना चाहते हैं। इसको ड्रॉ कीजिए, आप अपने हाथ पे ड्रॉ कीजिए, आप इसको हवा में ड्रॉ कीजिए, और उसका यूज़ कीजिए ज़ीबू सिंबल का। आइए देखते हैं कि हमें एंजल्स ने हमारे लिए कौन सा बैच फ्लावर चूज़ किया है। हमारे लिए बैच फ्लावर जो आया है वो है हीदर। अब हीदर ये बहुत क्लियरली बताता है कि आप अपने करंट प्रॉब्लम्स में बहुत घिरे हुए हैं। आपको करंटली आप जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बहुत वोकल भी हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है जब हम बहुत प्रॉब्लम्स की बात करते हैं ना, तो हम और प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप बोलेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने बोला कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन है मत बोलिए। फिर उन्होंने बोला कि तो मैं क्या चैलेंजिंग सिचुएशन बोलूँ, तो मैंने कहा नहीं, आप बोलिए लर्निंग फेज़ है। तो आपको अपना आउटलुक चेंज करना है। सिचुएशन चेंज नहीं होगी, पर धीरे धीरे आउटलुक चेंज होने से एटीट्यूड चेंज होगा, सॉल्यूशंस उसी प्रॉब्लम में दिखने लगेंगे। तो हीदर ये भी बताता है कि आपको फ़िलहाल आप अपने प्रॉब्लम से बहुत घिरे हुए हैं। आपको लोगों की भी बहुत एक तरह से ज़रूरत है, या लोगों को आप मिस कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द होना। ये बहुत ज़रूरी है कि अभी आप ये फीलिंग और प्रॉब्लम्स को सबसाइड करें, आप इमोशनली स्टेबल हो, और उसका रास्ता स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और इनर पीस है, ताकि आप इन प्रॉब्लम्स से कम्बैट कर सको। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको अपने आप को काम डाउन करना है। आप हीदर है, ये फ्लावर का आप डीपी बना सकते हैं। इसको आप, अगर आपके आसपास फार्मेसी खुल गई है तो आप बैच फ्लावर ख़रीद के उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये पिक्चर इसका डीपी बना के रख सकते हैं, उसको मेडिटेट कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं हीदर 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 कह के। उससे आपको बहुत डिफरेंस फील होगा। तो कार्ड्स अच्छे हैं। आप पीस पे कंसंट्रेट कीजिए। स्लोली धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी। अगर करंटली भी आपको स्ट्रगल लगे तो याद रखिए इस कार्ड को बिल्कुल नहीं भूलिएगा, एंड आप अपने डिसीजंस धीरे धीरे आगे की ओर ले सकते हैं। तो ये रही इस वीक की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई ये रीडिंग। अगर आपको लगता है इस रीडिंग से किसी और का भी फ़ायदा हो सकता है तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट्स में आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा, बिकॉज़ वो मुझे सचमुच बहुत मोटिवेट करता है, ताकि मैं नए वीडियोज़ लेके आ सकूँ। हर हफ्ते मैं वापस आ सकूँ आपके लिए वीडियो लेके। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। Hello everyone, this is Rasika Budhe Pathak, and this is for all you lovely guys who have chosen this beautiful pyrite crystal, the third pile. Now you have to before I start telling you about this crystal, when I was laying the cards, I was guided to tell you all that this week we all need protection. So if you see, I have my Hanuman ji right here, and Ganesh ji, who are overseeing this reading. This time I have also put my Ganesha card right on the top, because I feel that we all need protection in the coming week. It also, if your faith permits, please play
Hanuman Chalisa the entire week. Pray to God, Lord Ganesha, because he's the obstacle remover, he's the protector. I'm very strongly connected with Lord Ganesha. So is someone who's going to help us out in this week. Let's see what is your reading for this week. Now you've chosen this lovely stone, this pyrite crystal. Now pyrite is a crystal of manifestation. It is a crystal of abundance. It is also called as fool's gold, but it's only when you believe wealth is coming. It's only when you feel that abundance is on your way will abundance genuinely come. So pyrite is an amazing crystal. So it's telling me that good luck is on your way. So why I say good luck is on your way, you may not see some great things happening, but it is the beginning towards recovery. Okay, while I'm saying this, I am getting a very strong feeling that I'm not talking about stock markets at all here. Okay, because I have a different feel for that. That's not the point. I just want to clarify, while I'm talking about abundance and money, I'm not talking about stock market. So I'm talking about your personal abundance. I also feel that if you hold this crystal in your hand and you have an intent to release any kind of blockages, especially when it comes to money or finances or wealth, it really works. So it's telling me, guys, that you guys are slowly going to get lucky and things are going to improve in your life. Let's see what the cards are telling us. I'm so sorry. I'm also bringing up an online tarot foundation course. If you're interested, you can look up for the details in the link, and you can look up for the video as well. So let's see what are the situations that are coming up this week. Okay, oh lovely. You see, one is 4 and the other is 6 also. Okay, look at the cards. So 6 of cups is telling me that there is someone from your past who might just come up this week, who might just show up this week, or this could be a time of anyone in your life who's not serving the purpose to move out. Basically, it's telling me that it's time to mend relationships. It might be with your children, with your parents. It is all about a lot of mending, which I see, situations that are happening. Some of you, I think, are going to be very worried about your parents. But yeah, you will get a chance to take care of them. If not now, you might be able to get a chance to go back to your hometown in some time. But yeah, some of you might have some link or discussion or something with your hometown this week. I also see there are some, this is also about going back to something that you love. There is going to be opportunity for all of this this week. So it could be your passion, it could be your, it could be a person, it could be a career, it could be a health regime for that matter. So it is a chance to go back. That's really beautiful. Not everyone, it's almost like getting a second chance, now that I'm looking at this. So yeah, so there are a lot of good things which are coming up. I see you being worried about your parents, especially mental health. I don't know why I'm saying this, but yeah, so just don't worry so much. Take care and everything will be fine. Just keep being connected to them. Things will work out. The second card for situation I'm getting is the Emperor. Now this makes me feel that your hard work is paying off.
whatever you wanted is slowly manifesting. It's also telling me, even if you don't get maybe that kind of financial recognition, but there is some kind of recognition that you will get. People will still be respecting you. You will get an opportunity to get respected this week, for any reason. It could be you excelling in your career, it could be you doing things in a way which will catch an eye, or it will simply be your gestures that you have done in past, that brings you some kind of recognition this week. Some of you might get a major client or a good business opportunity or a self-employment opportunity. Some of you might get an opportunity to interact with people in leadership positions, or getting into that role also. So it's so lovely opportunities and things happening this week. Do encash on whatever good situations you are going to face. You might also get support from your boss or a senior person this week. So amazing situations. Make the most of it. So let's look at what are the tools that we have to make the most of the situation. Look at this. Oh my god, the cards that you have been drawing are amazing. Okay, now while I'm saying amazing, things are not, if things are going down, the recovery is not going to be V. I just want to clarify. Okay, so you have the star card. So I'm getting a feel that you are going to get a lot of messages, a lot of ideas from everywhere, which you will be able to translate into action or work or venture, something like that. Everything is in your favor. Communication is the key. Be very, very subtle with communication. Take time and reward. It's very important that you take a very peaceful approach. Take decision with cool head. Be very be very grounded when you take the decision, and you will be. That is the kind of energy that is this week. But so you have to listen to a lot of things. You're going to get messages, you're going to get ideas, and you can materialize it. So the intent to materialize is something that so the way to materialize is something that is going to be key this week. I also see Knight of Cups in the solution position, which means someone you love, either your spouse, your younger sibling, or your friend will come up, will be in a very supportive phase. It could be a children as well. Also, they will be vital in adding very positive energies to this situation. I see a lot of hope floating around. This will make you hopeful. This will help you bounce back. It is almost like it giving you a second, it's the second chance in life. It's giving you the energy, the thrust to just do something different or new, or make most of the opportunity that is going to come your way. So lovely energies. Let's look at what Ganesha is telling us. What are the Ganesha messages? Oh, look at the cards. Insight and enlightenment. So these two cards are very clearly telling me. So insight is telling me that you know what is your true happiness. It's almost telling, why are you not accepting that this is something that makes you happy, or this is something that is not making you happy? Why are you just not accepting it? It's asking you again to trust your intuition. See the messages, and this card is just telling you to trust your intuition. It's about
you basically become clearer, and you are more in tune with what you want, and you will start following it now. You will not, you have to live in harmony. So you have to come out of the denial mode. You are someone who is very intelligent and can have accurate imagination and perception. So it's asking you again to trust your intuition, and you know what your happiness lies in, and you are asking these questions to everyone. There's no need. Do as your work as your moral compass guides you. Now the enlightenment clearly tells me that you have support from the divine. Okay, it is telling me that you're connected to the divine source, and you have to look at it's such a beautiful card. It's almost telling me that you have to be in the receptive mode. What you want will manifest. Do it without a doubt. It's almost that you have to ensure that your energy blocks just don't stop you from connecting to the what do you say, to the Almighty. It's almost telling me like you are wanting to do a specific modality like Reiki, tarot, or you're simply choosing to meditate. You have to open yourself to the opportunities that will help you reach your goal. So my God, it's almost like everything is making you ready for the new world and new change and the new you. Very interesting. Let's look at what is the Zebu symbol that the angels have selected for you. The Zebu symbol that angels have selected is all nice. Sorry. I'm so sorry for this. Yeah, it's passion. Okay, so it's telling me that whatever you are now going to do, what you have to infuse is passion. Now, until we have passion, we can't really fructify anything. We can't really convert it into reality or make the best of that until we have passion, until we live each moment. So this drawing this symbol of passion will help you it will help you materialize your dreams, whatever you're looking at. It will help you manifest that and live each moment, make the best out of this. So passion is very important. Let's see what is the Zebu card that angels have selected for you. Oh my. Okay, it's walnut. Walnut is clearly talks about change. Okay, walnut is a card walnut is a flower which is a link breaker and a link maker. Interestingly, it's a link breaker and link maker. So it's breaking you from the older patterns, releasing the patterns. You have to get to the new. You have to find your source of inspiration. You have to work towards it with passion. You have to be in the receptive mode, and it will create a new link to the new world, to the new you, your new relations, your new professions. This card is urging you to be flexible. It's urging you to it's almost urging you to accept the change. When you chant walnut, or you have walnut as a batch flower, or you look at the flower, it just helps you forget the old memories, leave old habits that are not serving you anymore. It helps in regeneration of broken relationships. It helps in almost like ending the generation gap. See, you're worried about your family, your kids, and walnut will help you deal with this situation here.
it is also it is also telling me that it's it's basically leaving all, not anything that is not serving you anymore, and accepting all that is new. So very, very interesting cards, pile 3, the pyrite pile. Hope you all enjoyed the reading, and please mention in the comments below, did you resonate with the reading? How did you feel after reading it? It really, really motivates me. If you feel this is going to help you, help someone else, please share this reading with them, and have a great day ahead. Thank you so much. हेलो ऑल, ये उन सब के लिए है जिन्होंने ये थर्ड पाइल चूज़ किया है, पाइराइट पाइल। इसके पहले कि मैं आपको पाइराइट की रीडिंग बताऊँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं कार्ड्स बिछा रही थी, जब मैं रीडिंग कर रही थी, प्रे कर रही थी सबके लिए, तो मुझे बहुत क्लियरली मैसेज आया कि मुझे सबको बताना है कि ये हफ्ते में थोड़ा प्रोटेक्शन बढ़ाना है, प्रोटेक्टेड रहना है। आप देख रहे होंगे इस हफ्ते में मेरे गणेशा कार्ड सबसे ऊपर हैं, क्योंकि मेरे लिए गणेशा मैं उनसे बहुत कनेक्टेड हूँ। मेरे लिए वो ऑब्स्टिकल रिमूवर है, मेरे लिए वो प्रोटेक्टर है। अगर आप देख रहे होंगे तो आज मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाती हूँ, मेरी रीडिंग में आज हनुमान जी भी हैं। अगर आपकी फेथ आपको परमिट करे तो प्लीज़ हफ्ते में, पूरे हफ्ते में आप हनुमान जी का पाठ कीजिए, आप हनुमान चालीसा चलाइए, वो हेल्प करेगा। ओके, तो ये जनरल मैसेज था। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो पाइराइट की पाइल चूज़ की है वो क्या है। पाइराइट बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, इसको हम फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। ये ना किसी भी तरह की वेल्थ मैनिफेस्टेशन में बहुत काम आता है। ये गुड लक चार्म है एक तरह से। अगर मुझे वेल्थ के बारे में अगर कोई भी व्हाट डू यू से, अगर वेल्थ में कोई भी ब्लॉकेज है तो मैं जनरली अपने हाथ में पाइराइट लेती हूँ और मैं प्रे करती हूँ ये ब्लॉकेज, इस तरह का, इस चीज़ के लिए ये ब्लॉकेज है, वो निकल जाए एंड चीज़ें सॉल्व हो जाती है। जब मैं कहती हूँ, और ये गुड लक चार्म है, तो मुझे लगता है इस हफ्ते में गुड लक आएगा, फाइनेंशियल चीज़ें धीरे धीरे मूव होने लगेंगी। ऐसे नहीं कहती हूँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वी जो हुआ है उसका एकदम मतलब वी रिकवरी होगी, रिकवरी धीरे धीरे हो सकती है, बट इट इज़ द बिगनिंग ऑफ रिकवरी। धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट होगी। मैं जब ये कह रही हूँ, मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पर्सनल लेवल पे स्मॉलर फाइनेंसेस की बात कर रही हूँ। तो ये हुआ स्टोन के बारे में, और मुझे लगता है बहुत गुड लक, आपने गुड लक स्टोन सिलेक्ट किया है, चीज़ें यहाँ से आपके लिए मूव हो सकती हैं। आइए देखते हैं कार्ड्स आपको क्या बताते हैं इस हफ्ते। जैसे आपको पता होगा मेरा टैरो कोर्स आ रहा है, फाउंडेशन कोर्स। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं और वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं, और कोर्स आउटलाइन की भी वीडियो की लिंक है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। सो किस तरह के सिचुएशंस आने वाले हैं वीक में, आइए देखते हैं। आपके पास 4 है एम्परर वाला, और 6 है 6 ऑफ कप्स। नाउ 6 ऑफ कप्स मुझे बताता है कि आपको इस हफ्ते ऐसे सिचुएशंस आएंगे जो आपके होम टाउन से जुड़े होंगे। कुछ आप पास्ट को लेट गो करेंगी, कुछ पास्ट से जो लोग हैं जिनके साथ शायद बनती नहीं थी, या जिन कुछ चीज़ें जो हमने पीछे छोड़ दी थी अपने पास्ट को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, वो फिर से उभर के सामने आएंगी। ये टाइम है कि चीज़ें व्हाट डू यू से, ये सारी चीज़ें मेंड हों, उस चीज़ का ये टाइम है। ये मुझे ये भी बताता है कि आप में से कुछ लोगों का संबंध इस वीक आपके होम टाउन से आएगा। इधर आप जाएंगे, या आप सोच रहे होंगे कि अपने मतलब किसी को होम टाउन से बुलवा लें या ऐसे कुछ। ये ऑल्सो आपको ना बेसिकली
ये लाइफ में सेकेंड चांस देने वाला कार्ड है। तो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी, चाहे ऑफिस में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, जहाँ आपको सेकेंड चांस मिलेगा। तो या आप किसी को सेकेंड चांस देंगे, तो मेक द मोस्ट ऑफ दिस सेकेंड चांस। ऑल्सो मुझे ये फील आती है कि इस हफ्ते आपका कंसर्न आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स इस तरह से रहेंगे, तो डोंट वरी, दैट विल ऑल्सो बी टेकन केयर। आप कर पाएंगे मैनेज, जो भी आपको जो भी आपको व्हाट डू यू से आपको बैलेंसिंग करना है या डिसीजंस लेने हैं, वो आप कर पाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये रही एक टाइप की सिचुएशंस जो आपको आने वाली है इस वीक। और एम्परर बताता है कि आपने अभी तक जो मेहनत की है उसका फल लेने का टाइम आ रहा है ना। धीरे धीरे टाइम मूव कर रहा है। हो सकता है कि आपको अगर फाइनेंशियल नहीं तो आपको आपकी टीम या कुछ लोग आपको रिकग्नाइज़ करें, है ना। हो सकता है आपको अप्रिसिएशन मिले आपके एटीट्यूड के लिए, आपने जिस तरह के काम किए हैं उसके लिए, जो सपोर्ट प्रोवाइड किया है उसके लिए। हो सकता है आपको अप्रिसिएशन मिले इस बात का। हो सकता है आपको व्हाट डू यू से, कुछ लोगों को तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि किसी तरह का नया क्लाइंट या किसी तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। कुछ कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, या हायर लेवल लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, या लीडरशिप से सपोर्ट मिलेगा, घर वालों से सपोर्ट मिलेगा, या उनके बारे में कोई सिचुएशन है। बट ये बहुत डिसीजन मेकिंग सिचुएशन रहेगी, पावर आपके हाथ में होगी। इस तरह की ये सिचुएशन है। बहुत स्टेबल माइंड से आपको डिसीजन लेना होगा, या आपके फैमिली में किसी को डिसीजन लेना होगा। इस तरह की ये सिचुएशन आती हुई मुझे नज़र आती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी सिचुएशंस आपके लिए आ रही हैं। आइए देखते हैं कि क्या टूल्स हैं हमारे लिए इस सिचुएशन को कॉम्बैट करने के लिए। ओके, तो ये है, हाँ, आपके कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। स्टार कार्ड बताता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है अभी। ये भी बताता है कि आपको बहुत तरह के आइडियाज़ आएंगे जिनको आप मटीरियलाइज कर सकते हैं। आपको ओपन रहना है कम्युनिकेशन के लिए। आप प्रैक्टिकल तरह से डिसीजन लेंगे, आप ओवरऑल एक बैलेंस डिसीजन लेंगे। आपको ऐसे आप बहुत इमोशंस में नहीं बहेंगी, बहुत लोगों की बातों में नहीं आएंगे, पर आपको कम्युनिकेशन और आइडियाज़ हर जगह से मिलेंगे, और उसको आप अच्छे से बैलेंस तरीके से इसको आप मटीरियलाइज कर सकते हैं। इंश्योर आप अपना ईगो कहीं भी बीच में ना लाएं। कोई भी डिसीजन लेते समय ठंडे दिमाग से लें। वक्त आया तो टाइम ले के डिसीजन लें। इट्स ओके टू टेल समवन दैट आई विल गेट बैक टू यू, है ना, मैं बाद में बताती हूँ या मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। बट दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग फेज़। अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है तो आपके पास सारी चीज़ें हैं जो आपको इन सिचुएशंस में काम आ सकते हैं। सो मेक द मोस्ट ऑफ द एनर्जीज दैट यू हैव। ऑल्सो नाइट ऑफ कप्स मुझे बताता है कि ये एक प्लेफुल टाइम है जो आपके लिए आ रहा है। आपको मौका मिलेगा उस मोमेंट में जीने के लिए। हो सकता है कि आपके कज़िन्स की वजह से, या आपके स्पाउस की वजह से, या किसी छोटे बच्चे की वजह से आपको ये मोमेंट्स आए। ऑल्सो आपको, क्योंकि ये सोल्यूशन या सपोर्ट पोजीशन में आया है, तो मुझे लगता है कि आपको जो ये सारी चीज़ें सिचुएशन आएंगी उसमें अपने दोस्तों का, या अपने स्पाउस का, या अपने बच्चों का सपोर्ट मिलेगा। और इन मोमेंट्स को आप भरपूर इस इमोशनल हाई की वजह से जी सकती हैं। जो प्रॉब्लम्स रहेंगी ना, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं, मैं ये कह रही हूँ कि जो प्रॉब्लम्स रहेंगी आप उनसे ऊपर उठ के उस मोमेंट को जी सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी भर रहेंगी और कोई नहीं है जो प्रॉब्लम से छूट सकता है। बट प्रॉब्लम्स रहते हुए उससे ऊपर उठ के उस मोमेंट को एंजॉय करने में ही लाइफ का मज़ा है।
वेरी नाइस। आइए देखते हैं कि आपको गणेशा की तरफ से क्या मैसेजेस आए हैं। गणेशा आपको बोल रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका ना आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको पता है आपकी हैप्पीनेस कहाँ है। आप फिर भी डिसीजन लेने से कतरा रहे हैं या आप वो डिसीजन लेके उसकी ओर नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपने वो करना है जिससे आपको खुशी मिले, है ना। ये मुझे आपको बताने को बोल रहा है कि आपको अपना अटेंशन लेके आना है ताकि आप अपना क्या कहते हैं, आप और क्लियर कनेक्शन बना सके अपने आप के साथ। ये मुझे ये आइडिया देता है, आइडिया इन द सेंस, ये मुझे आपको बताने को बोलता है कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ यानी इंसाइट्स मिलेंगे अपने रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, पर्सनल प्रोसेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ना आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। जो मैं यहाँ भी कह रही थी, आपको ओपन रहना है ना। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ओपन रहे, हम बैलेंस तरीके से उसको एब्जॉर्ब करें आइडियाज़ को। और ये बता रहा है कि आप इंटेलिजेंट हैं, आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, आप एम्पैथेटिक हैं, आप इंट्यूटिव हैं, आपके परसेप्शन सही जाते हैं। आपको रिसेप्टिव रहना है और आपको जो चीज़ें पता चलती हैं, जो इसमें भी आया है कहीं तरह से, उसको मटीरियलाइज करना है। दूसरा जो गाइडेंस है आपका है वो एनलाइटनमेंट है। अब ये बताते हैं कि आप इस मोमेंट में ना यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन। आपको अपॉर्चुनिटी है, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट करने के लिए। अपनी एनर्जीज़ को आप हेवायर नहीं होने दें, बिकॉज़ वो अदरवाइज ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है आप में से कई लोग चूज़ करें कि अब मुझे हीलिंग प्रोफेशन की तरफ जाना है, मुझे रेकी की तरफ जाना है, मुझे कार्ड रीडिंग की तरफ जाना है, या सिंपली आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब से ना मुझे मेरी एनर्जीज हायर वाइब्रेशन पे लगानी है, मतलब रेज करनी है वाइब्रेशंस। तो मैं मेडिटेशन करूँगा, मैं अपनी बेसिकली ये कहना चाहती हूँ मैं कि आप अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ आप तक पहुँचने के लिए जो भी लगता है वो आप करेंगे। और आपके लिए हर चीज़ मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है। आपके कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल आए हैं। अपनी एनर्जीज़ हाई रखिए, धीरे धीरे चीज़ें मूव हो रही हैं, चेंज हो रही है। ट्रस्ट कीजिए, ये ट्रस्ट नहीं जाने देना है हमने लाइफ में। आइए देखते हैं कि आपके लिए ज़ीबू सिंबल एंजल्स ने क्या चूज़ किया है इस वीक। जो ज़ीबू सिंबल है वो है पैशन। जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो आपको अपने नए गोल की तरफ पैशन से मूव करना है। अब पैशन हर चीज़ में ज़रूरी होता है। पैशन ज़रूरी है अगर हम कोई अच्छा खाना बना रहे हैं, पैशन ज़रूरी है अगर हम अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं। उस मोमेंट, कोई भी चीज़ के मोमेंट को जीने के लिए पैशन बहुत ज़रूरी है। तो आप जब इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपको इंट्यूशन आ रही है, आपको मैनिफेस्ट करना है, आप पैशन के साथ कीजिए, एनर्जी डबल हो जाएगा। तो आप याद रखिए, आपको पैशनेटली ये सिंबल आप बनाइए, वीक में इसको यूज़ कीजिए। आप जो भी करेंगे उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी का जो बूस्ट है वो आपको ये ज़रूर देगा। आइए देखते हैं हमें ज़ीबू सिंबल हमारे लिए एंजल्स ने क्या चूज़ किया है इस पाइल के लिए। इट इज़ वॉलनट। तो वॉलनट क्लियरली बताता है कि ये टाइम है चेंजेस का, चेंजेस एक्सेप्ट करने का, चेंजेस होने का लाइफ में। वॉलनट लिंक मेकर भी है, लिंक ब्रेकर भी है। पुरानी चीज़ें जो हमें सर्व नहीं कर रही हैं उनसे लिंक ब्रेक हो रहा है। याद है मैंने इस कार्ड में किस तरह से मैंने बात की थी सिचुएशंस।
उसको ही ये अगेन एंजल्स आपको इसको क्या कहते हैं, रेटिफाई कर रहे हैं, आपको फिर से उसको बता रहे हैं। तो ये लिंक उस जो चीज़ सर्व नहीं करती उससे लिंक ब्रेक करेगा, जो चीज़ नहीं आएंगी उससे लिंक बनाएगा। आपको ये बता रहा है आपको फ्लेक्सिबल रहना है, आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। जब कुछ भी नया स्टार्ट हो, ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक न्यू बिगनिंग का कार्ड मुझे ये बता रहा है। अगर आपको अपनी पुरानी रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करनी है तो आपको वॉलनट यूज़ करना चाहिए, उसको चैंट करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, जो भी है। ये जनरेशन, आप देखिए, आप पेरेंट्स के बारे में, बच्चों के बारे में वरिड थे, तो ये जनरेशन गैप को रिड्यूस करने में भी आपकी हेल्प करेगा, है ना। तो अगर लोगों को जनरेशन गैप की वजह से चीज़ें उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप वॉलनट चैंट कीजिए, उनको वॉलनट दीजिए, चीज़ें इम्प्रूव होंगी। ये आपको पुरानी ओल्ड मेमोरीज़ को छोड़ने में या हैबिट्स को छोड़ने में भी मदद करेगा। सो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कार्ड्स जितने ब्यूटीफुल हो आपको सडनली उतना चीज़ें चेंज ना दिखे, बट इट इज़ डेफिनेटली मूविंग टूवर्ड्स द बेटर न्यू, है ना। अच्छे की शुरुआत ज़रूर है ये। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स थे, पाइल 3, पाइराइट पाइल। अगर आपको पसंद आया तो किसी से शेयर कीजिए जिसको आपको लगता है कि फ़ायदा होगा ये रीडिंग देख के। और आप कमेंट्स में आपको कैसा लगा ये ज़रूर देखिए, लिखिए। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उसके ऊपर रिएक्ट करती हूँ तो। और थैंक यू सो मच। मेक द मोस्ट ऑफ दीज एनर्जीज, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड।